بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ڈاکٹر ثنا غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کہتے ہیں نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. وہ شہادت کس کی تھی؟ وہ شہادت ایک چھوٹے سے بچے کی تھی. جی ہاں جناب, ابراہیم کے اس دنیا میں جانے کے بعد جو تنازعات کھڑے ہو رہے ہیں تو لگتا ہے کہ کراچی کو ایک نئی سیاست ملی ہے. وہ سیاست یہ ہے کہ آگے تعمیری طور پہ ہی آگے جائے گی, لیکن اس تعمیر کے لیے جتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کا وقت بھی آ گیا ہے. اس وقت بہت سے معاملات ایسے تھے جس پہ کھل کے گفتگو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کرنا ضروری ہے. کراچی کے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے روڈوں پہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں, بغیر قصور کے ان کو مارا جا رہا ہے. کراچی کے لوگ ڈکیتیوں میں لٹ رہے ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور پرسان حال کون ہے جناب؟ وہ ای چالان والے کیمرے جس کو سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت لایا گیا اور اب ای چالان پہ استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب, میں خود ای چالان کے حق میں ہوں, ہونا چاہیے, لیکن اس کے بعد وہ جو سہولیات دینی چاہیے وہ سہولیات کیا ہیں؟ حال تو یہ ہے کہ جناب ای چالان کی مد میں کتنے ہی فراڈیے اس وقت میدان میں آ چکے ہیں جو معصوم لوگوں کو اینٹھنے کا کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے کوئی بھی آپ کے سائبر سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے کہ کس طرح سے اس معاملے کی طرف جایا جائے, لیکن اس وقت یہ معاملہ ضرور ہے کہ اختیارات کی تقسیم کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں. کہیں ٹاؤن ناظمین, کہیں ٹاؤن چیئرمینز اور کہیں میئر کراچی. اس وقت بہت کھل کے بیانات کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ اب تھمنے کا نام نہیں لے رہا. لگتا ہے کہ یہ معاملہ کسی منطقی انجام پہ پہنچے گا. یہاں پہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو تنازعات ہیں وہ ابھی پبلک کے سامنے آ چکے ہیں, اور اس میں کون خاموشی سے کردار دیکھ رہا ہے کہ جناب اس کا کیا کردار ہے. اور کہتے ہیں نا کہ جلتی میں تیل ڈالنے والا کام. ایم کیو ایم اپنے طور سے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے, ہم نے تو پہلی جماعت اسلامی کو یہ کہا تھا کہ آپ اس طرح سے ان الیکشنز کا حصہ نہ بنے. اگر آپ ان الیکشنز کا حصہ بنے تو آپ کو یہ آگے پریشانیاں ہوں گی. متعدد دفعہ ہم نے اس پروگرام میں بات کی ہے کہ میئر کراچی نے وقتاً فوقتاً کہا کہ جماعت اسلامی ہماری پارٹنر ہے اور جماعت اسلامی ہمارے ساتھ مل کے کام کرے گی. میئر شپ کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ وہ میئر کی حیثیت سے کہہ رہے تھے, پارٹی کی حیثیت سے نہیں کہہ رہے تھے. وہ میئر کی حیثیت سے کہہ رہے تھے کہ جناب اگر ہمیں کراچی میں دونوں کو ساتھ مل کے ہی کام کرنا ہے تو جماعت اسلامی ہماری پارٹنر کے طور پہ کام کر رہی ہے. لیکن جب ہم نے جماعت اسلامی سے بات کی تو جماعت اسلامی نے کہا کہ ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک میز پہ بیٹھ کے ان چیزوں پہ بھی راضی ہو جائیں جو چیزیں وہ کہتے ہیں. ابراہیم کا معاملہ اپنی جگہ تھا, لیکن اب میئر کراچی نے بھی کہہ دیا حل صرف جماعت اسلامی. اور کیوں کہا یہ بھی آپ کو پتا ہے, بڑی عجیب سی سیاست ہے کہ یہاں پہ جو ٹاؤن ناظم تھے ان کے بورڈز کے اوپر کٹ کا نشان لگا کے جگہ جگہ سڑکوں پہ چوراہوں پہ لگایا گیا, اور ایسی جگہوں پہ لگایا گیا کہ وہ بالکل اچھا نہیں لگتا. لیکن کیوں کیا گیا, اس پہ کیوں بجٹ فکس کیا گیا ہے کہ جناب یہ والی تشہیر کی جائے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی الزام کہ جماعت اسلامی نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں. اور جماعت اسلامی جناب چونکہ ایک مذہبی جماعت کا بھی ٹیگ لگا ہوا ہے, یہ کہنا ضروری ہے پروگرام کے شروع میں, پھر ہم اپنے گیسٹ کو بھی موقع دیں گے کہ چونکہ مذہبی جماعت کا بھی ایک ان کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ اس وقت سود کی رقم کیوں کھا رہے ہیں؟ اگر اتنا پیسہ ان کے پاس یہاں پہ آ چکا ہے, ان کے اکاؤنٹس میں آ چکا ہے, روڈ کٹنگ ہو کہ جناب ایس ایس ڈی سی والا معاملہ ہو, تو اس ضمن میں جو ان کے پاس پیسہ آیا ہے وہ کہاں گیا؟ اب حساب کتاب دیجئے, اور اب ایک ایک روپے کا حساب کتاب دیجئے. اب پیپلز پارٹی یعنی کہ میئر کراچی اب کھل کے میدان میں سامنے آ گئے. بات کرتے ہیں اس وقت نجیب ایوبی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں, اور میری خوش قسمتی ہے آج سر آپ کو پروگرام میں سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں. اور بہت خوش قسمتی کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ اگر سامنے بیٹھ کے بات ہو جائے اور بہت سکون سے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. نجیب ایوبی صاحب کوئی کامنٹ نہیں کروں گی, انٹروڈکٹری پارٹ آپ نے سن لیا, کہاں سے شروع کریں گے؟ یہ ساری چیزیں, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں مجھے موقع دیا. بات تو جہاں سے بھی شروع کریں گے ایک ہی نقطے پہ آ کے ٹھہرے گی, اور وہ ہے حل صرف جماعت اسلام. اچھا لیکن بہرحال تمام موضوعات آپ نے جو چھیڑے ہیں وہ ٹاپک آف دا ٹاؤن ہے اس وقت یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ معصوم 3 سالہ ابراہیم اور آج عادل رئیس 21 سال کا بچہ جو کالج جا رہا تھا, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خبر بریک ہوئی ہے کہ شیرشاہ برج پہ میاں بیوی بائک پہ جا رہے تھے اور اس سے بھی ڈمپر نے جو ہے, تو ایک ہفتے میں 7 اموات یہ ہو جانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عجیب مقتل کا منظر پیش کر رہا ہے کراچی. یعنی جو اگر ڈکیتی سے اور موبائل اسنیچنگ سے مرنے سے بچ جاتا ہے تو وہ سڑکوں کے اوپر ڈمپر اور لوڈر کے نیچے آ جاتا ہے, ٹینکر کے نیچے آ جاتا ہے. حالانکہ کمشنر کراچی نے بڑے واضح احکامات دیے
اور اس پہ بڑی تعریفیں بھی کی گئیں کہ جناب ان کے وہ لگا دیے جائیں گے ٹریکر اور اسپیڈ لمٹ کنٹرول کر دی جائے گی. ان کو کہا گیا کہ اس ٹائم میں ان اوقات میں آپ نہ نکلیں. لیکن یہ دعوے محض دعوے رہے. عملی طور پہ 24 گھنٹے ٹینکر دندناتے پھر رہے ہیں اور تعمیراتی کام کے سلسلے میں ہیوی ٹریفک بھی رواں دواں ہے اسی میں. اچھا تیسری بات اس میں انتہائی اہم یہ ہے کہ روڈیں چونکہ اتنی سکڑ چکی ہیں مختلف اعلیٰ بالا پروجیکٹس کے نام پہ کہ جو 3 گاڑیاں گزرنے والی جگہ تھی بمشکل وہاں سے اب 2 ٹریک گزرتے ہیں. تو یہ سب بد انتظامی کراچی کے ریفرنس سے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی مس مینجمنٹ کیسے ہو رہی ہے. اور یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ چونکہ کراچی کا اسٹیک ہولڈرز یہاں پر موجود نہیں ہیں, کراچی جو جانتے نہیں ہیں وہ کراچی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. آپ نے آپ کی جو باتوں کا لبے لباب ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے بہت ایک جو ہمارے کراچی میں کام ہو رہا ہے BRT جس نے سب سے زیادہ کراچی کو متاثر کیا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دو لینز تھیں وہ متاثر ہوئی ہیں, اور میں بار بار کہہ چکی ہوں کہ یہ بن بھی گیا BRT, بہت سے لوگوں کو اس نے فیسیلیٹیٹ کر بھی دیا, تو کتنے لوگوں کو کرے گا جو مستقل گزرنے والے ہیں. لیکن سر مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر میئرشپ آپ کے پاس ہوتی, BRT کا منصوبہ بھی چل رہا ہوتا, تو کیا جماعت اسلامی منع کرتی کہ آپ لوگ اسی پلاننگ پہ کام نہ کرتے؟ دیکھیں 2016 میں یونیورسٹی روڈ بنی تھی اور اس یونیورسٹی روڈ پہ تقریباً 12 لاکھ افراد کی کمیوٹ کرنے کی گنجائش تھی, اس لیے کہ یہ بہت بڑا روٹ تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ BRT کی اس جگہ کوئی ضرورت تھی. تو جماعت اسلامی تو اس کے قطعی حق میں نہیں ہے. ابھی بھی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ اس پہ 15 سے 20% کام ہوا ہے, ابھی بھی وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اگر یہ کمپلیٹ ہو گیا تو اس کی تو کوئی ڈیڈ لائن ہی نہیں ہے. پہلے 2 سال کہا گیا, 2 سال کے بعد وہ 4 سال ہو گئے, یعنی 2016 کے بعد 18 میں یہ پروجیکٹ انہوں نے اناؤنس کیا تھا, 2020 میں یہ شروع ہوا, 4 سال پورے ہو گئے اور کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. کام صرف 15 سے 25% ہوا ہے اور تمام روٹ جو ہے وہ تتر بتر ہوا ہوا ہے. آپ کے سامنے تقریباً میں پورے اعداد و شمار کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ صرف اس روٹ کے اوپر 3 تو BRT کے ٹھیکیدار کے ملازمین شہید ہوئے, تقریباً 8 افراد سیویلین اس کے زد میں آئے ہیں. تو یہ کوئی درجن کے قریب اموات اور شہادتیں تو صرف BRT کے روٹ پہ ہوئی ہیں, اور BRT سے متاثرہ پھر یہ جو تمام جگہوں پہ جا رہے ہیں وہ معاملات الگ ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کمیوٹ کتنے لوگ ہوں گے, وہاں تو لاکھوں میں لوگ جا رہے ہیں نا. یونیورسٹی روڈ جو بنائی تھی بہت شاندار, تو اس میں بھی جماعت اسلامی نے بڑی کمپین چلائی تھی اور میں خود اس کمپین کا کنوینئر تھا. تو مجھے تو سب سے زیادہ افسوس ہے کہ روڈ 2 سال بھی نہیں چل سکی اور برباد کر دی گئی. یہ کس کے ایما پہ ہوا مجھے نہیں پتا. اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی شامل ہے, اس کے اندر ورلڈ بینک بھی شامل ہے, جیپنیز فنڈنگ بھی ہو رہی ہے, اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو ٹرانس کراچی چلا رہا ہے یا BRT کے الگ الگ جو منصوبے دیے اگر گئے ہیں. BRT بن بھی جاتا ہے تو BRT کے اندر چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بھی ہیں, ہم جیسے ابھی پکڑ نہیں سکتے. یہ اتنا گورکھ دھندا ہے, سوری ٹو سے کہ یہ میں آپ کو کٹ آف کر رہا ہوں, کہ یہ اتنا گورکھ دھندا بنا دیا کہ کسی کی رسپانسبلٹی نہیں سمجھ میں آ رہی. اتنا بڑا پروجیکٹ جو کہتے ہیں کہ کراچی کی قسمت بدل دے گا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو صرف 2% لوگوں کو کمیوٹ کر رہا ہے. 98% وہاں کی آبادی وہ اسی جنگلے کے اندر سائیڈوں میں گزر رہی ہوگی. اور دنیا کا کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایک SOP طے شدہ ہوتا ہے, مینڈیٹری ہوتا ہے. وہ SOP کے مطابق اس کو متبادل راستے فراہم کرنے ہیں, متبادل راستوں کے اوپر لائٹنگ کا بندوبست کرنا ہے, اور واحد یہ پروجیکٹ ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ دونوں کلاس جو ہے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. لوگوں نے راہداریاں اپنے اپنے طور پہ بنا لی ہیں, اپنے اپنے طور پہ راستے نکال لیے, اور یہ فیزیبل ہے ہی نہیں. دیکھیں جی, جب یہ چلے گی تو صرف ایک وقت کے اندر صبح سے لے کے شام تک پہلے فیز میں 50,000 لوگوں کو یہ نمائش یا اس سے آگے تک پہنچائے گی. اب آپ اندازہ کیجئے اتنا بڑا پروجیکٹ BRT کے حکام کہہ رہے ہیں کہ جب بسیں چلنی شروع ہوں گی تو 50,000 لوگوں کو لائیں گی اور لے جائیں گی, اور سیکنڈ فیز کے اندر پھر مزید 50,000, یعنی ٹوٹل جب آپ 100% اس کی ایفیشنسی پہ آئیں گے ٹرانسپورٹ کی تو 1 لاکھ لوگوں کو کمیوٹ کر رہے ہیں. تو باقی 14 لاکھ افراد 15 لاکھ افراد کدھر جائیں گے؟ تو یہ کس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس پروجیکٹ کو آپ اس روڈ کے اوپر لے کے آئیں؟ دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی آپ کو پیسے دے رہا ہے
तो वो कोई जेब से ऐसे ही निकाल के थोड़ी दे रहा है, वो तो उसके ऊपर तो ओवरहेड लगते चले जाएंगे, सूद बढ़ता चला जाएगा, और ये कराची के शहरियों को पे करना पड़ेगा। आपने तो बड़े मजे के साथ सबके साथ साइन कर दिए, एमओयू साइन कर दिए, और उसके बाद बीआरटी प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। क्या आप देखिए कितने रंग की इनकी लाइन है, येलो लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सारी लाइनें आखिर हवा में ये चल किधर रही हैं। अच्छा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा सर। मैं मेरे दूसरे गेस्ट को भी मैं लेना चाहूंगी कुछ देर में, लेकिन मुझे बताएं कि इसी बीआरटी में क्या आपको इल्म है कि बायोगैस के हवाले से भी बात हो रही थी, लेकिन जब मैं उसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ रही थी तो बायोगैस अगर खुदा न खास्ता, जाहिर सी बात है कोई भी हादसा हो जाता है, लीक होने की सूरत में इलाके में क्या जो फैलेगी उसमें उस हवाले से भी कुछ नहीं है। और उसके स्टेशंस तो थोड़ा बहुत मुझे नजर आ रहा था कि काम वाम उस पर हो रहा है, लेकिन क्या उसकी क्या प्लानिंग्स हैं कोई वो हवाले से आपके? जी जी, ये बहुत अहम आपने बात की है। इसका ताल्लुक है इन्वायरमेंटल से, और इन्वायरमेंटल इसमें वर्ल्ड बैंक ने कुछ काम किया, कुछ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स दी, और अभी मैं मिलके आ रहा हूँ इस्लामाबाद में डॉक्टर खालिद उमर साहब से, जो इस वर्ल्ड बैंक के तमाम ही प्रोजेक्ट्स को माहौलियात के हवाले से देख रहे होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी इसमें गलती कि अभी तो वो प्लांट ही नहीं लगा जिस प्लांट ने भैंस कॉलोनी में या कैटल जो एरिया है वहां पर लगना है, और ये वहां पर ये बायोगैस वो लाइनें, पहले प्लांट लगेगा, और प्लांट में भी देखिए कितनी बददियानती है कि अभी तक अवार्ड ही नहीं किया कि किस पार्टी को दिया जाएगा। इन्होंने इनिशियल बिड्स ले ली हैं पार्टी से, और तकरीबन सबने ही ये कहा कि जिस वक्त आप हमें ऑर्डर देंगे उसके 2 साल के बाद प्लांट लगेगा। तो अभी तो आप देखिए ये काम ही नहीं हुआ, अवार्ड ही नहीं हुआ। 2 साल के बाद अकॉर्डिंग टू एमओयू अगर तो वो प्लांट लग भी गया तो फिर क्या होगा? फिर भैंस कॉलोनी से बायोगैस की सप्लाई होगी, जो रोडें फिर पूरी कायदाबाद, पूरा मलीर और एयरपोर्ट एंड दिस। अच्छा, यहां पर तो चले ये समझ में आता है कि इन्होंने कुछ रिजर्वायर्स बनाए हैं बीच में, और उन रिजर्वायर्स में वो स्टोर हो जाएगी। आपका सवाल बड़ा वैलिड है, और ये मैंने भी ये सवाल किया कि इन केस ऑफ लीकेजेस तो वो जो एनवायरनमेंट को खराब करेगा, माहौलियात को डिस्टर्ब करेगा, उसका कोई जवाब किसी के पास अभी तक नहीं है। वो ये कहते हैं जब होगा फिर देखेंगे, हमने तमाम उसकी प्रिकॉशंस ली हैं। तो तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद आप 12 लोगों को मार चुके हैं अब तक, और उस रोड का बुरा हाल है। 30% काम मैं ज्यादा कह रहा हूं आपको। इसके 7 फेज हैं, इसको अच्छी तरह समझिए। पहला फेज है इसका रोड बनाना, दूसरा फेज है इसके अंदर बायोगैस की लाइन बिछाना, तीसरा फेज है इसके अंदर ओवरहेड ब्रिजेस या अंडरपासेस बनाना, चौथा फेज है इसके स्टेशंस बनाना, बस स्टॉप्स। तो इस तरीके से इसके 7 फेज हैं। आपने किसी एक फेज को भी मुकम्मल नहीं किया, और ना ये मुझे लगता है कि ये कोई 10-12 साल का प्रोजेक्ट है। सर इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस पर बात करेंगे। मसला सिर्फ ये है कि जब एमकेएम से बात होती है तो बहुत किस्से होते हैं हमारे सामने कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में कराची जिस तरह से डेवलप हुआ, उस वक्त हम भी भुगत रहे थे, बहुत टूटा फूटा था। लेकिन उस वक्त भी हमने ये बात कही थी, और आज भी हम कहते हैं कि इसकी जगह अगर आप मास ट्रांजिट वाला मंसूबा कर लेते तो शायद आज ये वाले मसाइल ना होते। प्लानिंग के बगैर काम करेंगे तो हमेशा ऐसे ही मसाइल होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं राना गुलजार ताज साहब, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। राना गुलजार ताज साहब, इस वक्त काफ़ी चीज़ें चपलिस चल रही है, उस पर तो मैं आगे बात करूँगी, लेकिन एक टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा है इस वक्त बीआरटी के हवाले से स्पेशली। सर, बीआरटी कोई भी मंसूबा होता है, उसको मुकम्मल करने के लिए प्लानिंग्स होती है, मंसूबा बंदी के साथ तमाम इदारों को मिलाया जाता है। लेकिन बीआरटी पे अगर हम कहेंगे चलो ठीक है कुछ अरसे के लिए हम कराची वालों को बर्दाश्त करना पड़ता है, मुस्तफ़ा कमाल साहब काम कर रहे थे तब भी बर्दाश्त करना पड़ा था, या कोई भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब नेमतुल्लाह खान साहब पार्क बना रहे थे तब भी हमने देखा कि बहुत से मसाइल हुए। लेकिन मंसूबा बंदी होती है, ये क्या सिलसिला है कि कभी गटर लाइन जो है वो पाइपलाइन सेवरेज की फट जाती हैं, कभी पानी की पाइपलाइंस फट जाती हैं, कभी ऐसा होता है कि जनाब K4 की लाइनें डलनी हैं तो उसमें मंसूबे के मसले होते हैं। सोचा क्यों नहीं जा रहा? आपको लगता है कि बीआरटी ठीक बन रही है और सही है सब कुछ जो कुछ हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपने अपने चैनल का।
देखिए, BRT मंसूबा बहुत अच्छा मंसूबा है, इसमें तो नो डाउट, उसमें बहुत लोगों को इसका इस्तिफादा भी शहर के लोग हासिल करेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने बात की प्लानिंग, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले इसकी प्लानिंग दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि इतना पैसा इस पर लग रहा है और ये बार बार जो कभी गटर लाइन का इशू होता है, कभी पानी की लाइन फट जाती है, कभी कोई और इशू हो जाते हैं, फिर लोगों की अमवात, जैसा कि अभी सुना कि 10-12 लोगों की मौत हो चुकी है, तो ये काफ़ी बड़ा लॉस है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि इंजीनियर्स और जो BRT मंसूबे को लुक आफ्टर कर रहे हैं, जो इसमें इंजीनियर्स हैं और जो डायरेक्टर्स हैं, उनको इनका बुरे का मुलजिम ठहराया जाए, क्योंकि इसलिए कि वो ये प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे, उनको ये प्लानिंग करनी चाहिए। और शहरियों का इसमें क्या कसूर है। और मैं समझता हूँ कि किसी दिन आप BRT मंसूबे का जो भी इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर है उसको आप ऑन बोर्ड लें, बुलवाएं, तो वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा टेक्निकल मेरी नॉलेज इतनी नहीं है, मुझे या तो कोई प्रोड्यूसर बता दें, ये डायरेक्टर तो सिर्फ आपका एक वो है ना जिसको आप काम दे रहे हैं, असल तो जो हुकूमत के लोग हैं उनको पता होता है कि हमें डायरेक्टर किसको बनाना है, हमें काम किससे करवाना है, हमें ठेका किसको देना है। ये तो काम एक तो वो तो समझ ले कि काम करने वाला है। देखिए, वो काम करने वाला है, लेकिन जो डायरेक्टर होता है ना, उसी के मातहत इंजीनियर्स होते हैं और इंजीनियर्स इसकी प्लानिंग करते हैं कि जी जो भी चीज़ें यहाँ आती, क्योंकि प्लानिंग कोई एक दिन की नहीं होती, प्लानिंग बड़ी लॉन्ग टाइम होती है। और जाहिर है इंजीनियर्स बड़े पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें दूरंदेशी होती है। सवाल पूछने का मेरा इख्तियार नहीं है, मैं मेयर कराची से सवाल पूछ सकती हूँ, मैं पीपल्स पार्टी से सवाल पूछ सकती हूँ, मैं हुकूमत सिंध से सवाल पूछ सकती हूँ, लेकिन मैं किसी डायरेक्टर से सवाल नहीं पूछ सकती। देखिए जी, इसमें बिल्कुल इसमें देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी कोशिश कर रही है कि इसको तेज से तेज मुकम्मल किया जा सके। मेयर कराची की जिम्मेदारी बनती है कि वो डे टू डे यहाँ पर विज़िट करें, डे टू डे इस पर रिपोर्ट तलब करें, ताकि जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ ना हो, क्योंकि इस गलतियों का खमियाजा कौम को भुगतना है। जब पैसे एक्सपेंस होंगे और पैसे बढ़ेंगे तो पैसे तो कौम अदा करेगी, तो लिहाजा ये मेयर कराची की जिम्मेदारी है, बिल्कुल इसको सही तरीके से होना चाहिए और बहुत जल्द इसको मुकम्मल करना चाहिए, क्योंकि जो इसमें खराबियाँ पैदा हो रही हैं, जिस तरह अभी मंजर अयूबी साहब ने बताया कि जी 7 फेज, हाँ अयूबी साहब ने कि जी 7 फेज इसके मुकम्मल है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको डे टू डे काम कर कर फौरी तौर पे इसको मुकम्मल किया जाए, क्योंकि शहरियों को देखिए मुकम्मल किया जाए, मुकम्मल किया इसलिए जाए कि शहरियों को भी परेशानी है, पैसे का भी ज़िया हो रहा है, पैसा भी क्योंकि बढ़ रहा है। जिस तरह कल अगर मिसाल के तौर पर ठेका ये टेंडर हुआ 10 रुपए का, तो आइंदा यही टेंडर 20 रुपए का हो रहा है, तो इससे महंगाई भी बढ़ रही है। तो मेयर साहब को चाहिए, और मेयर साहब कोशिश कर भी रहे हैं। आप इंटरफेयर करूंगी थोड़ा सा, कतई कलाम की माजरत, अगर वो मुस्तफा कमाल साहब के दौर में जो कुछ काम हुआ तो मुस्तकिल जो मुशर्रफ साहब की बात की जाती है, तो मुशर्रफ साहब, और ये कहा जाता है कि ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि मुस्तफा कमाल साहब ने रातों को जाग के भी विजिट किए और काम करवाए। क्यों? क्योंकि ऊपर से कॉल आती थी कि जनाब काम कितना हुआ है, यानी कि उस वक्त मुशर्रफ साहब उनको मुस्तकिल कॉल पे बात करके ये पूछते रहते थे डे टू डे। प्रॉब्लम ये होती है कि ऊपर से बात की जाए तो चीजें बेहतर होती है, जरूरी नहीं है कि हमसे मेयर पे ही चीजें डाल दें कि मेयर डे टू डे जाके विजिट करेगा, ऊपर से भी कॉल्स आना जरूरी है। शायद आसिफ अली जरदारी, मुराद अली शाह साहब, उनको भी इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है कि चीजें कैसे हो रही हैं। बात फकत इतनी है कि प्रोजेक्ट दिया जाता है, नेमतुल्लाह खान साहब ने बहुत से प्रोजेक्ट दिए, और नेमतुल्लाह खान के प्रोजेक्ट्स के बाद जितनी उनको इजाजत मिली, उसके बाद वही प्रोजेक्ट्स जो है मुस्तफा कमाल साहब को दिए गए। सोच किसी की होती है, करवाना किसी को होता है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। आगे चलते हैं जनाब, मैं आती हूँ राना गुलजार साहब। अब इंपॉर्टेंट चीज एक और आपसे पूछूंगी, नजीब अयूबी साहब, प्रोग्राम के स्टार्ट पे मैंने कहा था, जो मेयर कराची साहब अब खुल के कह रहे हैं कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, और वो कह रहे हैं कि अब तो जवाब देना पड़ेगा एक एक पैसे का, और वो कह रहे थे कि आप जनाब सूद नहीं लेते, तो पैसा आपके पास आया है, रोड कटिंग की बात कर रहे हैं, और आपने कुछ सुई गैस वालों की लाइंस जो डाली थी उसकी मद में भी आपने पैसा लिया था, आप मजीद भी आप पैसे ले रहे हैं, इसके अलावा पार्कों से भी पैसे ले रहे हैं, वो एक अलग मसला है। तो ये तमाम पैसे आप जा कहाँ रहे हैं सर? काम तो हो नहीं रहा, अभी गटक का ढक्कन नहीं लगा पा रहे हैं। देखिए, बहुत मुर्तज़ा वहाब साहब की जो इस वक्त, मैं वो जबान तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, मैं एक पार्टी को सभी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं अब तो, ठीक है, लेकिन मुझे अफसोस होता है उनके लबो लहजे पे, और बैरिस्टर भी हैं वो, इतनी मालूमात तो होनी चाहिए कि ये पैसे तो पीपल्स पार्टी के टाउन को भी मिले हैं, ये पैसे तो हर उस जगह मिले हैं जहां सुई गैस ने अपनी 30 साल पुरानी लाइनों को
तब्दील करने का एक वफाकी प्रोजेक्ट शुरू किया। तो उसमें जो जो एरिया जहां उन्होंने रोड कटिंग करनी है वहां उन्होंने पैसे दिए, और पैसे भी जाहिर है कि ये तो सईद गनी जब वजीर बल्दियात थे तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल का जवाब दे दिया था, वो भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और उन्होंने ये कहा कि ये पैसे किसी को, चेयरमैन को इसको नहीं दिए जा रही, एक अकाउंट में डाले जा रहे हैं और सुई गैस कंपनी डाल रही है, और चूंकि रोड काटी गई है, रोड खराब हुई है, उसकी रिपेयर की मद में ही वो पैसे लग सकते हैं। तो इसमें कोई सूदी अकाउंट और बिला सूदी अकाउंट का ये मतलब नहीं है। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, यूनियन काउंसिल का अकाउंट है उसमें ऑटोमेटिकली और वो डायरेक्ट यहाँ से आएगा, और वो आ रहा है, उसी तरह खर्च भी हो रहा है। तो बाकी टाउन का भी तो जरा मतलब बता मंतक दें। की बात ही नहीं थी ये। तो ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कोई टेक्निकल बात। अब Technical आज बात नहीं। मैं तो ये पूछता हूँ ना, जो ऑन रिकॉर्ड जो है 15 साल से 3,360 अरब रुपए, ये कहाँ है जो कराची की तरक्कियात के लिए फंड 15 साल में मिला? ये कोई मामूली रकम है डॉक्टर साहिबा, 3,360 अरब रुपए। उसके बाद इसका जवाब दे दें मेयर साहब, वो तो मेयर हैं, जवाब दे सकते हैं। फिर आप जवाब दे दें मुझे कि 2 अरब 64 करोड़ पिछले साल इन्होंने के इलेक्ट्रिक से जो वसूल किए हैं हमारे बिलों के में, और इस दफा भी 2,064 करोड़ रुपए, तो 4 अरब 5 अरब से जायद रकम है। ये कहां चली गई, इसका कोई हिसाब दीजिए। ये तो डायरेक्ट आपके केएमसी के अकाउंट में आए ना। इसके बाद जनाब म्यूनिसिपल टैक्स जो हमसे लेते हैं, बिजली के बिलों के अंदर आता है ना म्यूनिसिपल टैक्स, इसके 2 अरब रुपए का हिसाब दे दीजिए। इसके बाद आप ये तमाम चीजों को मिलाकर 1,000 अरब रुपए सिर्फ वो हैं जो ऑक्ट्राई की मद में आते हैं, वो भी आप यूनियन को नहीं दे रहे। तो ये किधर किधर जा रहे हैं ये पैसे? अब मैं आपको बताता हूँ ये पैसे कहाँ नहीं जा सर, रहे हैं। एक और भी है मैं जिसको आपको आप बता दूं जिसको कि आप बात भूल गए। खत्म हो जाएगी। देखिए, पहले वाटर बोर्ड, सीवरेज बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मास ट्रांजिट, एजुकेशन, सेहत, ये सारी चीजें, ट्रांसपोर्ट, ये लोकल गवर्नमेंट के पास आती थी। ठीक है। अब ये सारी की सारी उठ की चली गई है सूबाई गवर्नमेंट के पास। तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि 2016 में और नेमतुल्लाह खान के बाद मुस्तफा कमाल साहब के दौर में भी जो बजट कराची का था वो 40 अरब रुपए का था। सिंध का बजट था 850 अरब रुपए का। ठीक है। एज ऑफ टुडे, आज 2025 में 49 अरब रुपए कराची का बजट है बल्दियात का, और सिंध का बजट तरक्की करता करता, अंडे बच्चे देता 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 3,450 अरब चला गया। ठीक कोई तवाजुन है कि कराची का सारे वसाइल इन तमाम महकमों से, वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट, फला फला, एजुकेशन वगैरह से उठा के आप सिंध के अंदर लेके जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा फ्रॉड का तो जवाब देते ही नहीं। चलिए, आपके fraud का हम पैनल को मैं जिक्र करते हैं। बताता हूं, ये चलो, डॉक्यूमेंट ठीक, है। जी। ये बेटरमेंट लीवी है, कराची की बेटरमेंट लीवी। जितनी भी जेर तामीर इमारतें हैं, कमर्शियल हो या रिहायशी हो, उसका एक टैक्स जाता है जो कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जाता था 18वीं तरमीम के बाद, और उसके बाद इन्होंने इस पिछले से पिछले साल उसको कर दिया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। तो 2021 में सिंध हाई कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक जितना टैक्स ये लेते हैं उसका 45% कराची की यूनियन कमेटियों को दिया जाएगा। मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2021, 22, 23, 24 और 25, ये 5 सालों में अरब रुपया ये भी इनके पास है। ये तो हिडन था, ये तो बड़ा ढूंढ ढांड के निकाला है कि भाई बताइए मुस्तफा, ये हमारे मुर्तजा वहाब साहब की ये पैसे किधर हैं? ये किधर आप लगे हुए हैं कि सुई सर मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मसला ये है कि एक रकम आप भूल गए जो हिडन है, वो है पठारोों की रकम, जो कि कराची से करोड़ों रुपए ली जाती है सिर्फ एक टाउन से। वो एक अलग चीज है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं गुलाम जिलानी साहब, एमक्यूएम से आपका ताल्लुक है सर। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। गुलाम जिलानी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। गुलाम जिलानी साहब, एमक्यूएम के अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बल्दियाती हुकूमत और इख्तियारात के हवाले से, वो एक तरफ है, लेकिन अभी जो हाल ही में
जो इस वक्त बल्दियाती हुकूमत में दो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आपस की चपकलिश नजर आ रही है इख्तियारात के मामले में। एमक्यूएम का क्या मौक़िफ़ है, गलती किसकी लगती है आपको? क्या इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब जो हिसाब किताब की बात कर रहे हैं वो ठीक है, या आपको लगता है कि जमात इस्लामी वाकई जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है? क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों जमातें मिलकर जो है वो कराची की आवाम को जो है वो बेवकूफ बना रही है, और ये इनकी नूरा कुश्ती है कि जब किसी एक पे बुराई आती है तो दूसरे पे डाल के अपने आप को जो है वो क्लियर करने की कोशिश करता है, और जब दूसरे पर आती है तो पहले वाले पर डालकर जो है इस मामले को दबाने की कोशिश करता है। अब ये जो एक बच्चे की हिरासत का वाकया हुआ था, उसके बाद आप देखोगे कितनी सियासत की जा रही है, और मगरमच्छ के आंसू बहा के वहां पे मेयर साहब ने जो है वो अब ये अनाउंस कर दिया कि जी हमने हर यूसी को जो है वो 1 लाख रुपए का फंड दे दिया है, और इस 1 लाख रुपए के फंड में उसमें पूरी यूसी में जो है वो चैम्बर के जो है वो कवर लगवाने हैं, गटर के ढक्कन लगवाने हैं, स्ट्रीट लाइट सही करवानी है। वो मेरे ख्याल मेयर साहब ये भूल गए कि भाई 1 लाख रुपए में से 35% तो आपका टैक्स वगैरह में और कमीशन में भी चल जाता है, 35 से 40%, तो बाकी उसके पास बचता क्या है? जब आप ठेकेदार को 10% और दे देंगे तो सिर्फ 50,000 रुपए में कैसे पॉसिबल है कि वो यूसी का चेयरमैन जो है वो पूरी यूसी में जितने चैम्बर हैं उनके ऊपर कवर भी लगवा देगा, और स्ट्रीट लाइट, एक स्ट्रीट लाइट जो है वो 6-6 हजार रुपए की है, तो वो किस तरीके से लगवाएगा? वो ये नहीं पूछ रहे हैं उस चेयरमैन से, उस यूसी के चेयरमैन से कि भाई आपको जो पूरे महीने के जो है 30 दिन के 12 लाख रुपए मिलते हैं, उन 12 लाख रुपए में आप क्या कर रहे हो? तो ये सबकी मिली भगत है। और खुद मेयर साहब अभी जो आज की मेरे पास एक न्यूज है, शायद वो 100% सही हो, कि इन्होंने जो है वो वाटर एंड सर्विस बोर्ड के साथ मिलकर जो है कोई टेंडर किया, उसमें जो है वाटर बोर्ड की जमीन 5 एकड़ जो है इन्होंने उस ठेकेदार को दे दी, उसको जो है रिहाइश के लिए भी जगह दे दी, उसको पानी का भी इंतजाम करवा के दे दिया, और 4,500 रुपए फ्री कवर के हिसाब से जो है वो उससे परचेजिंग करेंगे गटर के ढक्कन की। तो जो गटर के ढक्कन आपको जो है 1200 से 2,000 रुपए के दरमियान में अच्छी क्वालिटी का जो है वो आम जगह से मिल जाता है, वो आपने अपने पसंदीदा शख्स को ठेके पर देकर 4,500 रुपए परचेज कर रहे हैं। तो ये सबकी मिली भगत है जो मिली भगत अपनी जगह है। आज मैं देख रही थी कि आप जो असेंबली फ्लोर है यहाँ पे सिंध असेंबली के में भी एक बात हुई थी, और आप पे जुमला कहा गया एमक्यूएम को, जब आमिर सिद्दीकी साहब ने मोटरवे को आलमी सतह पे बनाने की बात की कि ये वाली करारदादें आप फेडरल में अपने मिनिस्टर्स के जरिए लेके जाएं, यहाँ पे बात करके ऐवान का वक्त ज़ाया ना करें। एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ आपने कहा कि जो क्वालिटी की बात और आपने ठेकेदाराना निजाम के हवाले से बात की कि कितना कमीशन किसको जाता है। ये मेरे इल्म में है कि कुछ काम आप नॉर्थ नाज़िबाबाद में एमक्यूएम ने करवाया, हालांकि एमक्यूएम का काम नहीं था, उसमें भी ये मसाइल हुए कि जनाब हमसे करवाना चाहिए था, आपका तो काम ही नहीं था, पहले तो काम करने के तैयार नहीं, लेकिन एमक्यूएम ने खड़े होकर वो काम करवाया। तीसरी इस पे बात मैं कहती हूँ इब्राहिम वाले मामले पे, सिर्फ फलाही तंजीमें भी बीच में आई थी, लेकिन ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि नंबर गेम हो रहा था वहां पे, जमात इस्लामी अपने नंबर ले जाने की कोशिश कर रही थी, बाद में जो है वो केएमसी की मशीनरी आई उसको अपने नंबर लेने थे, और फलाही तंजीमों को काम करने नहीं दिया गया। सर काम भी नहीं करने दिया जाता, इसके कौन जिम्मेदार है, चाहे वो एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो? इस वक्त कह रहे हैं कराची की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? वजीर आला जो है वो पीपल्स पार्टी का, वजीर बल्दियात पीपल्स पार्टी का, मेयर पीपल्स पार्टी का, आधे से ज्यादा टाउन पीपल्स पार्टी के पास है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? एमक्यूएम की बनती है। मैं नहीं समझता कि मतलब आप जो बात कर रहे हैं उसमें कहीं सुधारते थे। अगर एमक्यूएम को काम करने दिया जाता तो आपको फारूक सत्तार भाई का टाइम, मुस्तफा कमाल का टाइम, वसीम अख्तर का टाइम, ये टाइम याद होंगे जिस दौर में जो है शहर कराची में तरक्की की थी। ये लोग तो शहर कराची से मुखलिस ही नहीं है। अगर ये मुखलिस होते तो 3 से 3.5 से 4 हजार अरब रुपए का बजट है, उसमें से शहर कराची के लिए 40 अरब रुपए का बजट जो शहर इनको कमा के दे रहा है, जिससे ये सिंध की तरक्की की बातें करते हैं कि हमने मोहनजोदारो को जो है वो दुबई और कतर बना दिया है, तो वहां जाके तो देखें वहां है क्या। आज आप सिर्फ सिंध का बॉर्डर क्रॉस करें तो आपको मोटरवे नजर आता है जो सक्खर से मुल्तान होकर पूरे पाकिस्तान में जाता है, और वहां से सक्खर से आप कराची की तरफ आए तो आपको जो है वो सफर बढ़ने का दिल करता है, और
जो दिल में आता है वो बकने का दिल करता है कि शहर कराची के लिए ये पीपल्स पार्टी जो है वो कितनी मुखलिस है। ये सूरत हाल है, इसमें इनको सिवाय आप लोग कोई भी बात करते हैं तो ये बड़ा अजीब सा आज कमेंट आया जो असेंबली फ्लोर पे आया, ऑन रिकॉर्ड हो गया कि आपको अगर कोई बात करनी है तो आप अपने वफाकी वजीर को जाके ये बात कहें, यहाँ पे टाइम जाया ना करें। तो आपकी बातों को ऐसा क्यों समझा जाता है सर, क्यों ये कमेंट आया? ये मुखलिस नहीं है ना शहर कराची से, ये कराची के मुताल्लिक या सिंध की तरक्की के मुताल्लिक कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। आप देखें इनकी हालत क्या है। एक जो इनका मिनिस्टर है वो किस तरीके से आयाशाना जिंदगी बसर कर रहा है, उससे शहर कराची से क्या लेना। वाटर बोर्ड का हाल आप देख लें, बाकी केएमसी का हाल आप देख लें, ये पतारों के मध्य में रोजाना जो है वो करोड़ों रुपए जमा होता है शहर कराची से। और फिर ये बोलते हैं कि हमने पार्किंग फ्री कर दी। कौन सी कराची में पार्किंग फ्री है, कौन सा रोड फ्री है जहां से पार्किंग फीस जो है वसूल नहीं की जा रही? और मेयर कराची इतने मजे से बोल रहे होते हैं कि जी हमने तो पूरे कराची को जो है वो पार्किंग फ्री जोन करार दे दिया है। आज भी आप चले जाए इंडस हॉस्पिटल जो कराची का है गरीबों के लिए बहुत अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है, गॉड गिफ्ट है, उसके वहां पे भी पार्किंग फीस ले रहे हैं। जिला अस्पताल के वहां पार्किंग फीस ली जा रही है। हालत खत्म हो गई थी। सर आपने शशके से बात की कि क्या लोगों के शशके में अब नाम और स्क्रीन नहीं ले सकती, लेकिन हमने तो टेस्ला ट्रक भी देखा है ओहदेदारान के पास। ही बड़ी हैरत की बात है कि मतलब पैसा माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको और दे, लेकिन बाकी पाकिस्तान में पैसे के रेल पर अल्लाह ताला उनको और दे पैसा, लेकिन हक हलाल की कमाई कर दे। इस शहर कराची के आवाम के खून पसीने की कमाई का ना दे, उनके अपने हक हलाल की कमाई पे इल्जाम लग गया है कि जमात इस्लामी भी जो है वो बैंकों में पैसा रखा हुआ खा रही है। बहरहाल नजीब अय्यूबी साहब ने उसका जवाब दे दिया। मुझे एक बात बताइएगा, फिर मैं गेस्ट की तरफ जाती हूँ। फिर बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने भी तो कहा है कि जनाब सूबे बनने चाहिए लेकिन मुत्तफका तौर पे होना चाहिए ये काम। तो आपको लगता है कि कोई खैर की नवीद है, कोई अच्छा काम होने जा रहा है? देखिए इस शहर कराची की हवाले से अगर कोई बात की जाएगी, इसकी बेहतरी के हवाले से बात की जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि सूबे बनने से कराची में बेहतरी आएगी ना। तो पंजाब में सूबा बन रहा है, केपीके में सूबे बन रहे हैं, तो सिंध में सूबा बनने में क्या प्रॉब्लम है मुझे बताएं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर भी बना दें, किसी भी सतह पे बना दें, लेकिन इस कराची को अलग करके देखें इस सिंध से जो मोइनजोदाड़ो की सूरत हाल इख्तियार किया हुआ है। तो कराची खुद कितनी तरक्की कर सकता है अपनी कमाई हुई उसके ऊपर के। कराची जो है 300 अरब रुपए या 400 अरब रुपए महीने के दूसरों को कमा के दे रहा है। अगर उसमें से 100 अरब रुपए भी हर महीने कराची पे लगे तो कराची जो है वो आपको पेरिस और लंदन से ज्यादा तरक्की करता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ का पैसा तो खैरपुर में लगता है। और मजे की बात बताऊंगा, आज तक पीपल्स पार्टी जो है खैरपुर में बने हुए चिड़ियाघर का हिसाब नहीं दे सकी कि वहां पे जो है 15 साल से या 8 साल से वो चिड़ियाघर के नाम पे हर साल बजट में पैसे रखे जाते थे। और वो पैसे कौन खाते हैं भाई? तो आप रख रहे हो तो आप भी लोग खाओगे ना। ठीक है सर, आप साथ ही रहें क्योंकि हम राना गुलजार साहब की तरफ जा रहे हैं। राना गुलजार साहब, इल्जामात ही इल्जाम है कि अब पीपल्स पार्टी मतलब मुझे तो मासूम बच्चा लगने लगी अब, जिसको मैं तो जितने शोज में देखती हूँ बड़ी बुराइयां होती हैं पीपल्स पार्टी की। और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मेयर कराची देख लें, मुराद अली शाह साहब देख लें, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। टेस्ला ट्रक भी नजर देखिए सियासी कारकुन है और इख्तलाफात होते रहते हैं और करना भी चाहिए और उसको तामीरी सोच की तरफ लेके जाना चाहिए। अगर कोई इख्तलाफ करता है तो उसमें नाराज नहीं होना चाहिए। ये हुस्न सलूक है सियासत का। देखिए जहाँ तक आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास तो बाइक है। मैं मेरे बेटे के साथ बाइक पे आया हूँ। मेरे पास तो कोई गाड़ी है नहीं। 120 गज के घर में रहता हूँ। मेरे पास तो यही एहसास ज़ात है। मैं तो एक अपनी जाती बात कर रहा हूँ कि पिछले दिनों एक FIR एक डायरेक्टर ने मेरे खिलाफ कटवाई थी लैंड ग्रेबिंग की। तो मैं तो अपना ट्रायल करा रहा हूँ कोर्ट में और मैंने बाकायदा आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ कि मेरा केस नंबर 1731 है। अगर मैंने किसी की जगह पे कब्जा किया है या मेरे पास असासे-जात जायद है तो वो कोर्ट में आए और वहाँ पे पेश हो जाए। मैं तैयार हूँ एहतसाब के लिए। तो एहतसाब का अमल जो है शफाफ होना चाहिए और मैं समझता हूँ कौमी दौलत लूटना जुर्म है, ये नहीं होना चाहिए। और आवाम ने हमें वोट दिया है आवाम की खिदमत के लिए। बात यह है कि इब्राहिम का जो केस हुआ है, ऐसे बहुत भी केस पहले हुए हैं। बड़ा अफसोसनाक अमल है और बड़ा अफसोसनाक अमल है और ये अमल काबिल मजम्मत है। इब्राहिम क्या, तमाम बच्चे कराची के सब इब्राहिम हैं और वो हमारे बच्चे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। देखिए उसमें कार्रवाई जो हुई SHO के खिलाफ हुई, मतलब दीगर अफसरान के खिलाफ हुई। कार्रवाई वार्ड काउंसलर के खिलाफ क्यों नहीं हुई? कार्रवाई UC चेयरमैन के खिलाफ क्यों नहीं हुई?
कार्रवाई टाउन चेयरमैन के खिलाफ क्यों नहीं हुई, कार्रवाई वाटर बोर्ड के एमडी के खिलाफ क्यों नहीं हुई, कार्रवाई वाटर बोर्ड का जो वाइस चेयरमैन है उसके खिलाफ क्यों नहीं हुई, कार्रवाई म्युनिसिपल कमिश्नर कराची उसके खिलाफ क्यों नहीं हुई, कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए थी, क्योंकि इसलिए कि असल जिम्मेदार ये लोग हैं। अब पुलिस के एसएचओ का वहां क्या काम, डिप्टी कमिश्नर का वहां क्या काम, वहां जो मुख्तार कार के खिलाफ कार्रवाई की, मैं समझता हूं ये कार्रवाई गैर मायना खेज है, ये नहीं होनी चाहिए थी। कार्रवाई तो ये इनकी डिमांड बनती है, वार्ड जो वार्ड है, जिस वार्ड में ये केस हुआ उसके काउंसलर के खिलाफ, उस यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के खिलाफ, उस टाउन चेयरमैन के खिलाफ। बात यह है कि कार्रवाई तो उसके खिलाफ होनी चाहिए जो वाटर बोर्ड के वाइस चेयरमैन है, कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी जो वाटर बोर्ड का एमडी है, और कराची म्युनिसिपल कारपोरेशन जो एमसी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो केएमसी के एमसी है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्या कर रहे हैं। और बदकिस्मती से आप ये समझते हैं कि फिर जो आप असल इस्तीफे इन लोगों से लेने चाहिए थे या केस इनके खिलाफ चलना चाहिए? बिल्कुल इनके खिलाफ है। म्युनिसिपल कमिश्नर क्या कर रहे हैं? म्युनिसिपल कमिश्नर नेहरू की बांसुरी बजा रहे हैं, मेयर को धोखा दे रहे हैं, करप्ट आदमी है, और उन्होंने सारी पूरे सिस्टम माफिया को जकड़ के रखा है। देखिए जी, यूसी चेयरमैन, यूसी काउंसलर, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, म्युनिसिपल कमिश्नर का एमसी जो, और आपका वाटर बोर्ड का एमडी, और वाइस चेयरमैन जो आपके वाटर बोर्ड के हैं। मैं ये समझता हूं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हर पार्टी को चाहिए कि वो इनको शोकाज करें, उनसे पूछें कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनकी डिमांड बनती है। मैं इसमें किसी की बुराई नहीं करूंगा कि वो गलत ये सही, मैं ये समझता हूं मैं बुराई नहीं करनी चाहिए, ये अमल गलत हुआ है, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मेयर साहब ने कह दिया कि जी मैं फेल हो गया, नहीं फेल नहीं हुए, एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई है। आप तो कामयाब हैं, आप पढ़े लिखे आदमी, आप बाशऊर आदमी हैं, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेशन सख्त करें। आपने जो ये एमसी म्युनिसिपल कमिश्नर इसको आपने जो है ना 6 साल हो चुके हैं, इसका यहाँ क्या काम है? 3 साल के लिए कोई भी ऑफिसर आता है जी, 3 साल के लिए ऑफिसर आता है, और वो वाटर बोर्ड की बात कर रहे हैं, मैं म्युनिसिपल कमिश्नर केएमसी की बात कर रहा हूँ, वाटर बोर्ड की भी कर ले सर, जी वाटर बोर्ड के एमडी की बात भी कर रहा हूँ। मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि 3 साल के लिए कोई भी पाकिस्तान उनकी मुलाजमत है, पता है आपको? मैं आपसे गुजारिश तो कर रहा हूँ, जरा मुझे तो करने एक बात करूं तो दूसरी करूं। नहीं सर, वो ऐसे में तो बात यह है कि 6 साल जब हो चुके हैं, 3 साल के लिए आते हैं, और वो एक ही जगह पर केएमसी में ही मौजूद है। बात यह है कि जब वो फेडरल से आते हैं तो वो 1 साल किसी डिपार्टमेंट में होते हैं, 1 साल दूसरे डिपार्टमेंट में होते हैं, उसकी खिदमत सूबे के लिए 3 साल के लिए होती है। वो 6 साल से आज में बैठे हुए एक ही सीट पर बैठे हुए, और तो और उन्होंने एक सिदम ज़र्फी ये भी की है कि जी अपने मामू को जो कराची का डेंटल हॉस्पिटल है उसके अंदर रजिस्ट्रार लगा दिया, 18 ग्रेड से रिटायर करके रजिस्ट्रार लगा दिया। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? तो बात यह है कि मेयर साहब को यह सोचना होगा। मैंने तो बार बार आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि मेयर साहब आप सुबह उठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप नमाज भी पढ़ते हैं, मगर यह है कि आपके जो मातहत ऑफिसर हैं उन ऑफिसों में जाएं, चेक करें कि सुबह हाजिरी भी पूरी है या नहीं है। क्योंकि इसलिए कि कोई ऑफिस 12 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, या आप 9 बजे का टाइम है, 8 बजे का, तो ये ऑफिसों में क्यों टाइम पर नहीं आ रहे? क्यों डिपार्टमेंट करप्शन हो रही है? वाटर बोर्ड के अंदर जो काली बोर्ड बैठी है, देख रहे हैं ना, जो भी प्रोग्राम तजर्बा कर लीजिए, कराची में कभी वाटर बोर्ड चले जाएं 11:30 बजे 12 बजे आपको लग पता जाएगा। और जहां बहुत अच्छी राना गुलजार साहब हमेशा बहुत अच्छी सी नपी तोली बात करते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा ना 3 साल 6 साल नहीं जनाब, ऐसे भी लोग हैं जो 9 साल से सीट पे मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। मुझे इस वक्त रिजवान खानजादा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, पीटीआई से आपका ताल्लुक है, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। रिजवान खानजादा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब। जी रिजवान खानजादा साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची में आपकी भी जो है वो स्टेक मौजूद है यहाँ पे बल्दियात में, लेकिन इस वक्त इख्तियारात की जंग और ये कि किसका कसूर था ये कहानी है। पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? कौन कसूरवार है, मेयर कराची या वो स्टेक होल्डर्स जो इस वक्त बल्दियात में शामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डॉक्टर साहबा, कोई अपना कसूर मानने को तैयार ही नहीं होता है कभी भी आज तक।
جب سے پاکستان بنا ہے. آپ کے ساتھ جو مہمان موجود ہیں 12 سال میرا خیال ہے ان کے پاس مشرف گور میں حکومت رہی اور پورے بلدیات بھی رہے, طاقت بھی رہی, نظام بھی رہا, لیکن رزلٹ صفر. آج بھی جو بلدیاتی نظام ہے, میئر کراچی ٹاؤن چیئرمین پہ ڈال دیں, ٹاؤن چیئرمین یو سی چیئرمین پہ ڈال دیں, یو سی چیئرمین گھما پھرا کر پھر میئر کراچی پہ ڈال دیں, سفر کراچی کی عوام کر رہی ہے. اور عوام سفر کرتے 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 مایوسی کی طرف چلی گئی ہے. اب وہ یہ سوچتی ہے کہ کوئی تیسری طاقت ہمارے پاس آ جائے, شاید اوپر سے اللہ کسی کو بھیج دے اور ہمارے کراچی کے یہ مسائل حل ہو جائیں. کراچی اس وقت جو ہے وہ روشنیوں کا شہر تھا, ہے نہیں تھا, اور اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی 17 سالہ کرپشن نے کھنڈر بنا دیا. سر آپ کو تو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں کراچی میں, سر آپ کے پاس بھی تو ہے نا اختیار. لیکن میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہمارے پاس 3 ٹاؤن ہیں ہمارے پاس کراچی کے اندر, ہمارے پاس یو سی بھی ہیں. میں نے کہا نا کہ 17 سالہ جو کرپشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس میں یہ سارے شامل ہو گئے. میں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 20 دن پہلے نیب چیئرمین کو ایک خط لکھا تھا جس میں میئر کراچی اور کراچی کے 25 ٹاؤن چیئرمین کے خلاف انکوائری کی میں نے اپیل کی تھی, جس پر ایک انکوائری اوپن ہوئی اور ایڈیشنل ڈائریکٹر دانش اقبال نیب نے میرا بیان بھی ریکارڈ کیا. میں نے سارے ثبوت بھی فراہم کیے کہ جی یہ جماعت اسلامی والوں کا بھی نام تھا نا سر, جماعت اسلامی کا بھی نام تھا, اس میں 3 پی ٹی آئی کے ٹاؤن چیئرمین تھے, باقی پیپلز پارٹی کے تھے. ہم نے اپنے آپ کو کوئی بری ذمہ نہیں ٹھہرایا اس کرپشن سے یا نااہلی سے کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں اور دوسروں پہ الزام لگائیں. لیکن میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ایک چیز تمام میڈیا کو, اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ واٹر سیوریج بورڈ کس کے انڈر میں, یہ کچرا اٹھانے کا نظام جو ہے وہ کس کے انڈر میں. ہم اصل انسان کو بھول جاتے ہیں. دیکھیں, وزیر بلدیات کو آپ نہیں بھول سکتے, یہ ٹاؤن بھی وزیر بلدیات کے انڈر میں آتے ہیں, ٹاؤن کے سارے افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی بلدیات کے انڈر میں آتی ہے, یہ واٹر بورڈ بھی بلدیات کے انڈر میں آتی ہے, یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی بلدیات کے انڈر میں آتی ہے. ہم جو ہے وہ میئر کراچی کے پیچھے لگا دیتے ہیں, ہم ٹاؤن چیئرمین کے پیچھے لگا دیتے ہیں. اصل جو سربراہ ہے کراچی کا وہ وزیر بلدیات ہے, جس کے انڈر میں تمام سرکاری لوگ بھی آ رہے ہیں, ٹاؤن چیئرمین بھی آ رہے ہیں, یو سی چیئرمین بھی آ رہے ہیں اور کونسلر بھی آ رہے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ پوری کراچی میں 246 یو سی ہیں, 890 کونسلر بنتے ہیں, 890 کونسلر, 25 ٹاؤن چیئرمین, پھر میئر کراچی. میئر کراچی کے پاس جو ہے وہ شہر کی بڑی بڑی سڑکیں ضرور ہوں گی, ٹی وی کا ٹاک شو ضرور ہوگا, پلیٹ فارم پاکستان پیپلز پارٹی کا ضرور ہوگا, لیکن اختیارات وزیر بلدیات کے پاس ہیں. ہم اس طرف نہیں جاتے, ہم اصل مسائل کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. آپ ٹاؤن چیئرمین کی اور یو سی چیئرمین کو, ایک یو سی چیئرمین کو 12 لاکھ روپے ملتے ہیں مہینے کے. آپ ان کا حساب لیں ان سے, چاہے وہ کسی کا بھی یو سی چیئرمین ہو. ٹاؤن چیئرمین کے پاس کروڑوں روپے آتے ہیں. یہ جو روڈ کٹنگ کا معاملہ چلا تھا آج سے 2 مہینہ پہلے, وہ 2 دن میڈیا پہ باتیں آتی ہیں, اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ حل ہے, حل کہ ہم حل کیا چاہتے ہیں کراچی کا. کراچی کا حل ایک ہی ہے کہ کرپشن کی مکمل انکوائری کرائی جائے, پاکستان پیپلز پارٹی کے 17 سالہ حکومت کا فرانسک آڈٹ کرایا جائے, یو سی چیئرمین سے لے کے میئر کراچی تک کا احتساب ہونا چاہیے, وزیر بلدیات کا احتساب ہونا چاہیے. جب کرپشن نہیں ہوگی اور کرپشن ختم ہو جائے گی, آپ یقین کریں کہ نہ گٹر کے ڈھکن غائب ہوں گے اور نہ یہ روڈ ٹوٹیں گے, نہ یہ نالے بھریں گے, نہ کوئی بچہ گر کے مرے گا. اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے کرپشن. سر ہمارے ساتھ ہی رہے گا. آپ نے جب حل کہا تو مجھے لگا کہ وہ جو چیز ہے وہ حل صرف جماعت اسلامی والی بات جو آ رہی تھی, اب تو میئر کراچی نے بھی کہہ دیا, تو مجھے لگا نہیں, جماعت اسلامی کے پاس ڈاکٹر صاحب 9 ٹاؤن ہے, یہ خود کرپشن کے اندر ملوث ہے. کیا کر دیا 9 ٹاؤن نے, بتائیں آپ. 9 ٹاؤن ان کے پاس ہے, انہوں نے کوئی ایک ٹاؤن بتا دے مجھے, کراچی کا ایک ٹاؤن بتا دے کوئی انہوں نے ماڈل ٹاؤن بنایا ہو,
कोई एक काम आज एक बता दो, वीडियो भी मैंने लीक हुई हुई है ना जिना टाउन के जो वहाँ अरे मैडम, मेरे पास तो बहुत कुछ है इनके लिए, मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों ने इन पर भरोसा किया, लोगों ने जमात इस्लामी को शायद अपना हल समझा, लेकिन ये सीटें बांट दी गई। ये फिर 47 की पैदावार पे लोगों को ले आए कि 47 के फॉर्म से जीतो, मजे करो, पैसे कमाओ, घर चले जाओ। अवाम रुलती है तो रुलने दो, रोड टूटते हैं तो टूटने दो, गटर भरते हैं तो भरने दो, बच्चे गटर के अंदर गिर के मरते हैं तो मरने दो। हमने तो फिर जीत जाना है उन्हीं की गोद में बैठकर जो हमें 47 से जितवाते हैं। सर साथ ही रहिएगा। मैं हमेशा हक और सच पे बात करती हूँ, काफी मसाइल भी होते हैं, लेकिन जहां बल्दियात की बात की जाए तो उस वक्त चूंकि हाफिज नईम यंगस्टर की एक आवाज बन के सामने आए, तो मुझे ऐसा लगता है और ऑन रिकॉर्ड बात है कि मिला था जमात इस्लामी का वोट, ऐसा नहीं था कि नहीं मिला था। और जहां तक करप्शन की बात है तो अब मेरे प्रोग्राम में ही जमात इस्लामी की आला क़यादत में से लोग ये कह चुके हैं कि हमारे भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जब ये मामला हुए तो हमारी नज़र में हैं तमाम लोग कि जो करप्शन में मुलविस होते हैं उनकी हिसाब किताब किया जाता है। आपकी तरफ आते हैं नजीब अयूबी साहब। नजीब अयूबी साहब, एक सवाल आपसे रह गया, पार्कों के ठेके वाला। आप पार्कों के ठेके के हवाले से भी जवाब दीजिएगा कि वहाँ पे कोई आप ग्राउंड बनाते हैं, उसमें फिर आप पब्लिक पार्टनर जो है वो प्राइवेट शिप के हवाले से पैसे लेते हैं, क्या सिलसिला है सर? इसका भी पैसा मिल रहा है आपको? ये स्टोरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अच्छा प्रोग्राम करती हैं, लेकिन आप बैलेंस नहीं कर पाती प्रोग्राम। और बैलेंस ये होता है कि आप मौका दें, पूरी बात करें। पार्कों में जमात इस्लामी ने केस किया, मुर्तज़ा वहाब साहब के जब दूसरे रास्ते बंद हुए पैसे कमाने के, मिसाल के तौर पे उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास करवाने की कोशिश की और करवा भी लिया था कि शहरी आबादियों के अंदर हर घर जो कि 400 गज का है और 120-200 गज का है, उसको कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब ये था कि हर मोहल्ला उसके अंदर आप ढाबे खोल देंगे, कोई जिम बन जाएगा, कोई और बन जाएगा, तो उस रिहायशी ब्लॉक की तो वैसी तैसी हो जानी है। चुनाचे जमात इस्लामी अदालत में गई और अदालत ने, सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, ये एक्टिविटीज तो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो ये आमदनी का जो एक पूरा सिलसिला था मुर्तज़ा वहाब साहब की, वहां तो लग गया ताला। इन्होंने फिर दूसरा जरिया ये सोचा कि जितने पार्क्स हैं उसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज को और पार्क को आधा आधा करके जिम के नाम पे और वो यूथ क्लब्स के नाम पे और पूरे क्लिफ्टन के पार्क कब्जा हो गए, गुलशन के अंदर आना शुरू हुए और ये पैसे। अब हम फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया, रुकवाया, लेकिन वो अभी तक नहीं रुके। अच्छा, इस दौरान जिन पार्कों के अंदर जमात इस्लामी के टाउन में भी जहां ये वाली एक्टिविटीज चल रही थी कि किराए पे झूले झुला रहे हैं या चीजें, तो हमने फौरी तौर पे नोटिस और पिछले एग्रीमेंट को कैंसिल किया और उसको खत्म कर दिया। लेकिन चूंकि वो आपके अंडर आते थे, इसलिए बताया जा रहा है कि आप पैसे ले रहे हैं। टेंडर होता है, उसको कैंसिल किया इसलिए कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया और हम ही पिटिशनर थे, हमारी ही ईमा के ऊपर। आज इस वक्त भी आप देखिए कासिम पार्क का क्या हाल हुआ है, दीवारें तोड़ दी गई रातों रात, किसकी फरमाइश पे हमें नहीं मालूम। अब वहां क्या दुकानें निकलेगी, और सुनने में ये आ रहा है कि वो कोई एक बहुत बड़ी वहां पर सकाफती एक्टिविटीज के लिए पूरा साल के लिए किसी पार्टी को दे दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्लिफ्टन और के जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके तमाम बड़े बड़े पार्क्स जो हैं वो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट ने फैसला दे दिया लेकिन ये काम किए चले जा रहे हैं। तो पार्क का तो मैंने आपको सारा नक्शा बता दिया। अब आ जाइए उस पॉइंट के ऊपर कि जिसके ऊपर तकरीर तो हो रही है, हकायक नहीं बयान किए जा रहे। हमारे राना गुलजार साहब भी माशाल्लाह बात तो कर रहे थे, तो ये तकरीरी मुकाबला तो है नहीं, ये तो एक डोमेन है जो गजट के अंदर आया हुआ है। डोमेन के मुताबिक कराची केएमसी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, जिसका काम पानी देना और गंदे पानी की निकासी का काम, ये इसके चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब हैं बतौर मेयर, अथॉरिटी उनकी है। इसी का काम है गटर की सफाई, ढक्कन लगवाना, मेंटेनेंस करना। और ये अब बताइए, जब काम इसका है तो हम दाएं बाएं ऊपर नीचे क्यों देखें? दूसरी बात, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये जनाब किसको दिया गया? सारी दुनिया जानती है कि ये कौन मंजूर नजर है और ये कैसे ZMCs के अंदर आपने ठेके देने शुरू कर दिए, ये भी बराह रास्त सिंध हुकूमत देख रही है। मास्टर प्लान सिंध कंट्रोल अथॉरिटी हो गया कराची वाटर मास्टर प्लान से, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, सेहत, ये सारे डोमेन सिंध हुकूमत के पास है भाई।
اس میں آپ کیسے کسی کو کونسلر کو اور چیئرمین کو پکڑ سکتے ہیں؟ قانونی طور پہ نہیں پکڑ سکتے، لیگل بنتا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے پکڑیں گے؟ تقریر میں کر لوں گا، کسی سے بھی کروا لیں، لیکن جب عدالت میں جائیں گے وہ یہ کہے گا اس کی ذمہ داری کس کی ہے، 2 منٹ کے اندر فیصلہ ہو جانا ہے۔ اچھا جس جگہ وہ بچہ مرا، میں تو اذان کی بات بھی کر رہا ہوں، میں تو اس بچے کی ابراہیم کی بات بھی کر رہا ہوں، میں تو عادل کی بات بھی کر رہا ہوں، اور یہ 24 ہلاکتیں ہوئی ہیں گٹر کے اندر گر کے، شہادتیں جو بچوں کی ہوئی ہیں یہ 24 ہیں، 1-2 نہیں ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار 1580 درخواستیں کونسلر، چیئرمین، ٹاؤن چیئرمین، انہی لوگوں کی وہاں پر جمع ہے مرتضی وہاب صاحب کے پاس۔ کسی ایک درخواست کے اوپر بھی آپ نے ڈھکن نہیں لگایا۔ ان کا تو سب سے بڑا پروجیکٹ یہی تھا جس کو وہ گاتے تھے کہ ہمارا پروجیکٹ ہے کہ ہم ڈھکن کی فیکٹری لگا لی ہے، ڈھکن دیتے چلے جائیں گے، جس کو چاہیے میں ڈھکن دے دوں گا۔ ارے بھائی 1580 ڈھکن تو آپ کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں نا، اس کے اندر کچھ 7000 ڈھکن لکھ کے ہیں کہ دیں۔ سر آپ مجھے اب اجازت دیں تو میں دوسری کیس کی طرف بھی جاؤں، اور جہاں تک بات ہے گٹر کے ڈھکن کی تو چھوٹا سا کامنٹ ہے، نشئیوں کو بھی روکنے کی کوشش کریں۔ مجھے 6-8 مہینے پہلے ہم نے سنا تھا کہ بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، تو میرے خیال ہے وہ ایسا کریک ڈاؤن ہوا نہیں، بلکہ جو ہلاکتیں ہوئی اس پہ جوان لڑکوں کی موت ہوئی تھی اس کے بعد بھی وہ معاملہ دبا دیا گیا۔ تو نشئیوں کے حوالے سے بھی جو نشہ کرنے والوں کو بھی پکڑنا چاہیے۔ رانا گزار صاحب، وقت کم ہے، گیسٹ آج میرے پینلسٹ زیادہ تھے، رائے دیجیے گا سر اپنی۔ دیکھیے جی بالکل صحیح بات ہے، جو درخواستیں ہیں ہم نے تو آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میونسپل کمشنر جو درخواستیں ہیں صبح 10:30 بجے ڈاک چیک کرنے آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ڈاکیں میئر صاحب کی ڈاک ہوتی ہے اور جو خلاف ہوتی ہے میئر صاحب کی اس کو چھپا دیتے ہیں، اور جو اپنی ڈاک ہوتی ہے ان کو وہ آگے پرسو کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی بات میونسپل کمشنر کی ہے، میونسپل کمشنر کو اس چیز کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ میئر صاحب نے بہت اچھا اقدام کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر اورنگی ٹاؤن کو چینج کیا اور نیا پروجیکٹ ڈائریکٹر انہوں نے لگایا، بہت لائق تحصیل کمپیٹنٹ آفیسر ہے، اور انہوں نے آتے ہی میں سمجھتا ہوں اتنا بہترین کام کیا کہ وہ تمام ریکارڈ کو سیل کیا اور تمام چیزوں کو انہوں نے اوکے کیا، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میئر صاحب آپ تمام آفیسر، ایسے ہی آفیسر تمام ڈپارٹمنٹ میں آپ لے کر آئیں جو آنیسٹ آفیسر ہوں، اور تاکہ تمام چیزیں درست ہو سکیں، کیونکہ اس لیے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ کمپیٹنٹ آفیسر آپ کے پاس بہت ہے، لیکن ایسے ہی لے کر آئیں جس طرح اورنگی کا پروجیکٹ ڈائریکٹر آپ نے لگایا ہے کچی آبادی کا، تاکہ وہاں پر ایک کام اور بھی ہے کہ لوگوں کی املاک کو اتنا نقصان پہنچایا کہ پچھلا پروجیکٹ ڈائریکٹر جو میں لڑتا بھی رہا ہوں اسے 5 ارب روپے کی زمین اس نے جو ہے نا وہ الاٹ کر دی ہے، اس کو نہ سسپینڈ کیا گیا ہے نہ اس سے ابھی تحقیقات کی گئی ہے۔ میئر صاحب اس کو سسپینڈ بھی کریں اور اسے تحقیقات بھی کریں کہ یہ رفائی پلاٹ کمرشل کر کے لیز کیا گیا، یہ کیسے کیا، اور اس کو میونسپل کمشنر اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، اس کی سرکو بھی کی جائے۔ رضوان خان زادہ صاحب آپ سے لاسٹ کامنٹ ہم لیں گے، بات تو بہت کافی طویل ہے آپ کریں گے، لیکن کل اڈیالے کے باہر جو واقعہ ہوا علیمہ خان صاحب کے حوالے سے اس پہ کوئی کامنٹ آپ دینا چاہیں گے؟ جی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ انسانی، اخلاقی، قانونی، آئینی طور پہ صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کسی بھی خاتون کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ خاتون کے ساتھ کیا، کسی بھی شہری کے ساتھ یہ وحشیانہ تشدد کی سیاست اور حالات ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ میں نے کہا نا کہ آپ پانی پھینکیں، گولیاں چلائیں، ربڑ کی گولیاں ماریں، اصلی گولیاں چلائیں، ڈنڈے ماریں، کچھ بھی کریں، حل نہیں ہے۔ ہمیں حل کی طرف جانا ہوگا۔ حکومت کو سمجھداری کا فیصلے کرنے چاہیے۔ اڈیالہ کا گیٹ کھولنا ہوگا۔ اڈیالہ کا گیٹ اگر نہیں کھلے گا تو یہ مسئلے اور مسائل چلتے رہیں گے، حل نہیں ہوں گے۔ آپ کو سیاست اگر کرنی ہے حکومت کو، اور حکومت کو حکومت بھی کرنی ہے، تو ظلم کیسے کر سکتے ہو آپ ظلم کرو گے جواب آئے گا، ظلم کرو گے جواب آئے گا، ظلم کرو گے جواب آئے گا۔ آپ کو تو شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے، آپ کو ملاقاتیں کھولنی چاہیے، آپ کو جو ہے فیسلٹیز کرنا چاہیے، ان کی فیملی کو دینا چاہیے، موقع دینا چاہیے۔ یہ زیادتیاں جو ہے یہ حل نہیں ہے مسئلے کا۔ میں تو شروع سے کہتا رہا ہوں کہ مسئلے کا حل زیادتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ آپ اس کو جمہوریت کو جمہوری طریقے سے سامنے لے کے آئیں، دکھائیں کہ یہ جمہوریت ہے، یہ ہماری حکومت ہے، اور یہ ہم آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں۔
آپ کھولیں ملاقاتیں، کیوں بند کی عمران خان صاحب کی ملاقاتیں؟ یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے کہ آپ ڈرائیں گے اور ہم ڈر جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. بہت شکریہ رضوان خان زادہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہے، غلام جیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، رانا گلزار طاہر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہے، نجیب ایوبی صاحب، آپ لوگ سب کا بہت شکریہ. میرے ملک میں حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.